Hello everyone, welcome in science class. In our previous topic, we had discussed that atom consists of different subatomic particles. But now the question was that how these particles are arranged inside the atom. It was a big question. So it cannot be answered without studying about the structure of an atom from inside. And we all know that atom is a very small particle. We cannot see it. So all the informations are based on experimental observation, complete information. So different scientists proposed different structure of the atom based on their experiments. The first one scientist, Thomson, J.J. Thomson, and their model of atom is popular by the name Thomson's model of an atom. According to Thomson, an atom is similar to a Christmas pudding. Remember, it is similar. Don't write atom is a Christmas pudding. They basically showed a resemblance between the Christmas pudding and the structure of atom. The pudding had positive charge and the electrons having negatively charged were like plums on the pudding. Like in the pudding, the sphere contain positive charge and the plum, the dry fruits which are present in the pudding, they act as negatively charged electrons. So what he proposed? He proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. Embedded means धसे हुए हैं. So atom consists of positively charged sphere and these are the electrons which are embedded. Let me remember you, this model was also famous by watermelon model. Like in the watermelon, red part is like proton and the black colored seed which are embedded in the red part like electrons. So this one is also known as watermelon model. The negative and positive charges are equal in magnitude. So the atom as a whole is electrically neutral. That means they told that the electrons and protons which are present in the atom, they are equal in magnitude. Same थे number में, जितने electrons थे उतने ही protons थे. So that's why atom is not having positive charge as well as not having negative charge. So that's why atom is electrically neutral. So it is very important thing that how atom is electrically neutral because it contain equal number of protons and electrons. दो ही चार्ज होते हैं, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और दोनों इक्वल हैं. सो दैट मीन्स एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. बट थॉमसन्स का मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया. Why the Thomson's model was rejected? Because this model could not explain the stability of an atom. देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के इतने पास हैं, then according to the charge rule they attract each other. When they attract each other, the atom will collapse, but atom would not. It cannot collapse. It will not collapse. आपने कभी देखा है आपके सामने रखी रखी चीजें गायब हो जाती हैं? ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा. ये कोई मैजिक तो है नहीं. तो हमारे सामने कोई बुक रखी है, कोई भी चीज रखी है, एवरीथिंग कंटेन एटम. तो कभी आपने देखा है कि वो एकदम हवा के बुलबुले की तरह फट जाए, पानी के बुलबुले की तरह फट जाए? नहीं. सो एटम बहुत स्टेबल चीज है. तो एटम की स्टेबिलिटी को थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता था. सो दैट्स व्हाई दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड. इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड. रदरफोर्ड के मॉडल को बोलता है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम because it gave very important points related to the atom. This model, before discussing about the model, let's discuss about the experiment which conclude the model. So Rutherford allowed a beam of fast moving alpha particles
alpha particles having positive charge to fall on a thin gold foil. ये मैं आपको यहां दिखाऊं, देखिए ये रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ली और ये एक डिटेक्टिंग स्क्रीन चारों तरफ लगा दी, यहां से एक अल्फा पार्टिकल एमीटर लगाया जिससे अल्फा पार्टिकल की बीम इस गोल्ड फॉइल से टकराएगी और टकराने के बाद वो रेज वापस आती हैं या कहीं भी जाती हैं तो इस डिटेक्टिंग स्क्रीन पे उनको इजीली डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो ट्रांसमीटर भी था, डिटेक्टर भी था और इस गोल्ड फॉइल को लिया उन्होंने। द क्वेश्चन वॉज कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को ही क्यों लिया? देन बिकॉज गोल्ड फॉइल, सब गोल्ड जो है वो मोस्ट मेलेबल मेटल है, तो अगर वो किसी मोटे मेटल की शीट को ले लेते, किसी लाइट मेटल की शीट को ले लेते जो कि मेलेबल ना होती, तो उस कंडीशन में क्या रेज निकल के यहाँ डिटेक्टिंग स्क्रीन पे मिल पाती? नहीं मिल पाती। तो उन्होंने ऐसे मेटल को चुना, द मेटल विच इज मोस्ट मेलेबल, सो दैट वाज गोल्ड। हालांकि गोल्ड के अलावा वो सिल्वर भी ले सकते थे, कोई भी जो है ऐसा मेटल लिया जा सकता था जिसका एटम थोड़ा हैवी हो। अब दूसरी बात आती है दैट व्हाट आर दीज अल्फा पार्टिकल? एक्चुअली द अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम एटम है। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डबली चार्ज हीलियम एटम हैं। डिफरेंट एलिमेंट है नेचर में, उनमें से एक एलिमेंट हीलियम है, तो हीलियम के डबली चार्ज पार्टिकल्स को ही इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स कहा। तो उन पार्टिकल्स की बम्बार्डेशन की गई इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं, हम अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें इसको, 1 मिनट देखिए, एनसीईआरटी में क्लियरली इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इस एक्सपेरिमेंट को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंट इट वाज क्लियरली मेंशन कि भाई जो अल्फा पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स वो बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं थे और बहुत ज्यादा हल्के भी नहीं थे। तो अल्फा पार्टिकल को लेने का एक रीजन ये था कि इतने भी हल्के नहीं थे कि वो डिफ्लेक्शन ना शो कर सके। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए, इस एक्सपेरिमेंट इतने भी भारी नहीं थे कि वो जो है इससे टकराने के बाद कहीं डिटेक्ट ना हो पाए। तो अल्फा पार्टिकल को लेने का अपने आप में एक बहुत बढ़िया रीजन था कि भाई अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, if we see in the NCERT, then it was written here on page number 47 that he selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible। तो ठीक है, बहुत मेलेबल होनी चाहिए, इतनी मेलेबल थी कि नियर अबाउट 1000 एटम थिक, बस इतनी मोटी लेयर। अल्फा पार्टिकल्स जो थे those were doubly charged helium ions and because they have a mass of 4u। अच्छा, ये अभी आपका प्रीवियस चैप्टर की बात है। उनका जो मास था, उनका मास जब उनको बम्बार्डेशन किया गया यहां से, तो उनके अंदर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो बम्बार्डेशन के लिए चाहिए थी। एंड इट वाज expected at the time that alpha particle would be deflected by the subatomic particles which are present in the atom। क्योंकि ये तो पता चल चुका था कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी सिर्फ पोजीशन, लोकेशन देखनी थी। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने सोचा कि मैं जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डेशन करूंगा तो जो एटम के अंदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन शो करेंगे। भाई ये अल्फा पार्टिकल्स उनके थ्रू डिफ्लेक्टेड होंगे, बट सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हेवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। अब क्योंकि प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका था, प्रोटॉन का मास पता था, तो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से हल्के नहीं थे, प्रोटॉन से हल्के नहीं थे, वो भारी थे प्रोटॉन से। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन भी नहीं कि भाई पता लगे इस डिफ्लेक्टिंग स्क्रीन से ही निकल के कहीं चला गया, कुछ अजीब सा रिजल्ट है, नहीं। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आज तो हम उनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं, पर सोचिए उनको कितना टाइम लगा होगा इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करके फिर कंक्लूजन पे आने में।
तो चलिए खैर हम देखते हैं, वी आर वेरी लकी दैट वी हैव दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नाउ। सो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट में देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये जो गोल्ड फॉइल के एटम्स की हमने एक लाइन बना दी, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट थे, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट चले गए थे। Some of the alpha particle were slightly deflected by a small angle, कुछ एक small angle पे deflect, like this one, deflect हो गए थे। Very few, very few means कितने, कि भाई क्या रेशो रहा होगा। Very few means 1 out of every 12,000 particles, 12,000 particles में से कोई एक rebound हुआ था। देखिए this one shows rebounding. So most of the alpha particles passed straight, some alpha particles were slightly deflected and very few particles appeared to rebound. तो आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया, क्या किया आपने, ये ऑब्जर्वेशन देखी उनकी क्या की। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या निकला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस वन वाज कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, क्योंकि सीधे चले गए थे। देखिए जब पार्टिकल्स को किसी ने रोका ही नहीं, इसका मतलब कोई रोकने वाली चीज थी ही नहीं। सो दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स सीधे निकल गए थे। सेकेंड पॉइंट, द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस वर्ड रदरफोर्ड ने ही बताया था। तो उन्होंने कहा कि कुछ पार्टिकल एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। अब सोचिए, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से ही डिफ्लेक्ट हो सकता है, और तो कोई रीजन डिफ्लेक्शन का है ही नहीं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं ना, तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। दैट्स व्हाई इमेजिनेशन थी कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के पास आया होगा, तो रिपल्शन फोर्स की वजह से वो डिफ्लेक्ट होकर दूर चला गया। तो उसी को उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत कम एरिया में प्रेजेंट है, और उस एरिया को इन्होंने बोला न्यूक्लियस। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, क्योंकि अगर बड़ा होता तो फिर तो बहुत सारी रेज डिफ्लेक्टेड मिलती, पर कुछ रेज मिली थी डिफ्लेक्टेड सिर्फ, इसका मतलब कुछ ही एरिया में वो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू साइज ऑफ एटम, और स्मॉल तो है ही, साथ ही साथ वो बहुत डेंसली इन पार्टिकल्स से पैक्ड भी है। देखिए प्रोटॉन्स हैवी हैं, ये हमने पीछे पढ़ा है, दैट प्रोटॉन्स आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। So these protons are present in a very small area inside the atom, और उसी छोटे से स्मॉल एरिया से कुछ पार्टिकल्स रीबाउंड हुए हैं। मतलब इतना डेंसली पैक्ड वो एरिया था कि अल्फा पार्टिकल उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए, तो वहां से गए और टकरा के वापस आ गए। Because very few alpha particles appear to rebound, and most of the positive charge and mass of the atom is inside the nucleus. Very important line. Rutherford explained that because most of the protons, positive charge, and you can say the most of the mass of the atom is present inside the nucleus, and nucleus is present at a very small area inside the atom. तो देखा जाए एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, सारा पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही साथ उस पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स के हैवी होने की वजह से मास भी लगभग सारा सेंटर में ही है, और इसी सेंटर को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस का। सो दिस न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि रदरफोर्ड ने बताया था, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियस मॉडल अगर किसी को बोलते हैं ना, तो वो रदरफोर्ड के मॉडल को बोलते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल। फाइनली, an atom has a positively charged nucleus at its center
and most of the mass of the atom is in the nucleus. ठीक है, एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूक्लियस उसके पास प्रेजेंट है और वो सेंटर में प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. और ये कट कर दीजिए इन डिफरेंट ऑर्बिट. ये बात अभी पता नहीं चली है, जो बुक में नया जो आया है, न्यू बुक्स में कुछ चेंजेस आए हैं, तो उसमें ये बात कट कर दी गई कि भाई ये बात तो फिर आगे नेक्स्ट मॉडल में पता चलेगी. सो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. The size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. I think it's enough for you for today. We will discuss this particular model once again in the next session of this chapter, so that you can easily understand it clearly. Okay, have a nice day. Goodbye.